ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਦੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਓਕੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਬੋਲੋ, ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਡਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ? अब मेरा की बनेगा? हाँ, मैं किधर जाऊंगा, कौन बचाएगा? उस सिचुएशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ। ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰਦਨ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ, ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰੂਸ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੇ ਭਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾਇਆ। ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ, ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੱਚ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਸੂਲ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਰਸੂਲ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। अब प्रेरितां च एक क्वालिटी है, और सब तो ज्यादा वचन को पूरा करते हैं। उन्होंने चमत्कार का कोई मतलब नहीं होता, याद रखना हमेशा। रसूलां अंदर एक क्वालिटी है, रसूलां प्रेरितां दे अंदर एक क्वालिटी है, उन्होंने विश्वास है वचन दे उत्ते, और वचन दे उत्ते मनना, वचन ते खड़े रहना। इसलिए साडे स्पिरिचुअल फादर हमेशा एक गल बोलते हैं, अड़े रहो खड़े रहो। की बोलते हैं? अड़े रहो। जिन्ना देर तक वचन साड़ी जिंदगी दे उग नहीं पैंदा, जड़ नहीं फड़ लेंदा। अब मैं एक चीज दसना चाहना, जिन्नी देर तक वचन साडा जमीन च उग जांदा और कुछ टाइम लैके वो उगदा नहीं, जिन्नी देर तक वो पेड़ नहीं बन जाता उन देर तक साडी लाइफ विच असीं नहीं कह सकते कि असीं फलदार, असीं कदे नहीं कह सकते फलदार। अब उस चीज नूं टाइम लगदा है। हर एक आत्मिक बंदे दी, मैं नॉर्मल क्रिश्चियन की गल नहीं कर रहा, आत्मिक क्रिश्चियन जो स्पिरिचुअल है, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਉਸਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੋਸਟਲੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਬਸ ਰੋਜ਼ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜੋ ਸੁਣ ਲਿਆ ਬੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਰਜਾਈ ਪਾਈ ਸੋ ਗਏ, ਦੈਟਸ ਇਟ। आत्मिक पिता ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਟੈਸਟਮਨੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਵਚਨ ਲਈ। उस वचन लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि जो बाइबल कहती यीशु मसीह बोन ली बीज दिंदा। अब जो बीज सानू दिता गया है उन्होंने बोना है, किने? असी बोना है। उनकी केयर किने करनी है? असी करनी है। हालेलुया हालेलुया। और आत्मा का स्पर्श उन्होंने लाइफ विच आंदा है और वही महसूस कर पाते ने जो उस औखी घड़ी दे विच भी बिलीव करते हैं और वचन उत्ते चलते हैं। इसलिए बाइबल च बार बार लिखा गया वचन नूं पकड़ी रख, वचन नूं पकड़ी रख, वचन नूं पकड़ी रख।
और वचन द्वारा ही हॉली स्पिरिट काम करता है। मैं ऑलरेडी तुम दस चुका, यीशु मसीह वचन ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤਰਿਆ? ਕਦੋਂ? ਬਰਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਅਲੱਗ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਪੜਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ 1000 ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵੱਖਰਾ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ हॉली स्पिरिट लाइफ साडी कुछ मंगदा है। की मंगदा है? बाइबल कहती यहोवा दी बाढ़ जो वो तेन बल देगा। अब वो किस बल की गल कर पवित्र आत्मा की? क्योंकि बाइबल कहती है, जोएल नबी की पुस्तक में लिखा, ना तो बल ना शक्ति ना, लेकिन आत्मा द्वारा। आत्मा द्वारा सब कुछ हो सकता। इस मतलब साडे जोर लगाने की जरूरत नहीं है। कई बारी मैं भी पहले करता सी, जो ले हैंड होनी या परमेश्वर के दास ने कहना चलो ऑयल लगाओ, ले हैंड करो, जाओ एवेंजलिस्ट को भेजना, परमेश्वर ने वॉलंटियर भेजना, जाओ ऑयल लगाओ, प्रेयर करो। अब मैंने लगता सी शायद अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रख तो धक्का जब वजूगा तो शायद फिर पता लगे कि हॉली स्पिरिट दा टच करदा, डिगेगा तू धड़क नहीं। पहले तो अपने आप को कठोर करके रखना, लेकिन एक दिन पता लगा कि अपने आप को परमेश्वर ने डील करना है। अपने आप को कठोर नहीं करना, बल्कि अपने शरीर नु, अपने स्पिरिट नु जो सानू शरीरक दिती गई है उन्हें लूजन करना है परमेश्वर आत्मा के सामने, ता जो काम कर सके। कई तो बुत बन के खड़ जाते राम अपने अपने अकड़ा के, हॉली स्पिरिट नहीं टच करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सारा शरीर उस टच करने स्पर्श दे काबिल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के लिए रसूल उस समय जो जानते बने कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं किस द्वारा? वचन देते, वचन दे जो बीज बोया उन्हें खाद दे रहे हैं, बार खाद दे रहे हैं, बार खाद दे रहे हैं, उन्हें पैदा कर रहे हैं, उनकी खुदाई कर रहे हैं। बाहर लोग बट्टे मारने लिए, उन्होंने टीम मारने लिए, डंडे मारने लिए, गाला कटन लिए, सूली चढ़ाने लिए, उन्होंने वचन कटन लिए खड़े ने, लेकिन वो किस पुकार रहे हैं? पवित्र आत्मा। वचन देते जोर, वचन ते जोर, वचन ते जोर। और वो एक चीज का अंगीकार कर रहे, पिता तेरा वचन सुनाया, वचन तेरा सुनाया, तेरे वचन को पहुंचाया, पिता आज साडी प्रार्थना सुन। और बाइबल कहती पवित्र आत्मा होने पे आग दी न्याय उतर रहा। बाइबल के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग राज्य बच्चियां वर्ग है और आत्मा बच्चियां तो जल्दी उतर आंदा। रीजन की है? पाप रहित जीवन। और मैं ऑलरेडी तुम दस चुका, हॉली स्पिरिट सारी लाइफ तो कुछ डिजर्व करता, कुछ चीज़ां मंगदा है। इसे वचन पे डिस्कस करांगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जे अपने जीवन में कुछ कमियां दूर नहीं करांगे, बैठे रहेंगे सारी उम्र इदा ही सुनते जावांगे, हाँ जी आमीन आमीन करते जावांगे, लेकिन स्पिरिट दा, हॉली स्पिरिट दी समझ सारी लाइफ से नहीं आएगी, ना उनका स्पर्श आएगा। अब मैं एक चीज पूछना चाहना, किन्नी को जरूरत है हॉली स्पिरिट दी? किन्नी जरूरत है? बोलो, बहुत ज्यादा। किन्नी किन्नी हॉली स्पिरिट की जरूरत है? बहुत ज्यादा। एटर्नल लाइफ में। हाँ जी, एटर्नल लाइफ में। बाइबल कहती है हॉली स्पिरिट द्वारा प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए और यीशु मसीह हॉली स्पिरिट दा मुर्दे च जीव थे। हॉली स्पिरिट द्वारा काम कर पाए, इना मतलब हर चीज ली, हर चीज में पैदा करने लिए, मुर्दे च जिंदा करने लिए किसी चीज की जरूरत है? हॉली स्पिरिट की। एक आदमी पाप चला गया, अपने आप से मर गया, तो उन्हें जिंदा करने के लिए की चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। उन्हें शुद्ध करने की चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए।
मैं ऑलरेडी तुहानू वचन में दस चुका कि पुराने नियम च कहंदा सी पवित्र आत्मा के सामने कौन खड़ सकदा सी, जो पिछले महीनों तो पिछले सालों तो लैके टिल उस डेट तक पवित्र रहा होवे, कोई सिंगल पाप कोई सिंगल वर्ड उन्हें ना गंदा बोले भी, वही परमेश्वर के भवन विच उस पर्दे दे पिछे जिथे पवित्र आत्मा उतरदा सी और यहोवा पिता गल करदे सी उथे खड़ सकदा सी। जे थोड़ा जिना पाप आएगा तो बाइबल कहती है लाश वापस आती सी, कदे वापस नहीं आता सी। और लोग उस परमेश्वर के भवन के पर्दे पीछे जान तो लोग डरते सी, उस पर परमेश्वर की इन्नी लाइट होती सी जो कि पापी है तो उस लाइट में सहन नहीं कर पाता सी, डेथ हो जाती सी उत्थे। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा साडी लाइफ से कुछ चाहता है उतरन दे लई। जे तुसी जहाज लैंड कराना है किथे कराओगे? रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, हाँ किथे कराओगे? किथे होएगा लैंड? एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट दे की एयरपोर्ट दे जिथे वो कैबिन बने होंदे कैबिन दे विच उतरेगा, जिथे ऑफिसर बैठे उत्थे उतरेगा, जिथे सामान रखे उत्थे उतरेगा, या फिर कोई पार्टिकुलर जगह बनी हुई उत्थे उतरेगा? किथे उतरेगा? पार्टिकुलर जगह जिथे बनी हुई है वो एक सड़क तो हुंदा आ, एक ऐसी जगह तो रुकेगा जिथे दी प्लेस है उसे एक नहीं उतरना, कई उतरते हैं लेकिन हर एक अलग अलग उतरता है और हर एक अलग अलग व्यक्ति में एंटर करता है और निकलता है, चढ़ता है, एंटर करता है। उसे प्रकार पवित्र आत्मा सारी जिंदगी दे विच आंदा है, हर एक दी जिंदगी दे लई वखरे रास्ते दे उत्ते आंदा। सब दे सारे ने ये तो नहीं कि कनेडा में जाना है, कोई न्यूजीलैंड जाने वाला, कोई ऑस्ट्रेलिया जाना, कोई यूरोप जाने वाला, कोई और कंट्री जाना, कोई पाकिस्तान जाने वाला है। सब दे लिए हॉली स्पिरिट अलग अलग उतरदा है, लेकिन हर एक दी कंडीशन के अनुसार है। हालेलुया हालेलुया। अब हॉली स्पिरिट एक्सप्रेशन आज जी अपनी जिंदगी दे पर्सनली लेना चाहता है। मैनू भी भुख सी, मैं भी यही कहता सी, मैनू कभी स्पर्श नहीं होया। मैनू भी जो सवाल पूछा कि हाँ हॉली स्पिरिट तेन कभी टच महसूस है, मैनू भी लगा कदे नहीं होया, कदे नहीं होया। क्यों नहीं होया? अपने आप को कठोर करके रखना, वचन से बैठना, प्रार्थना से बैठना। बाइबल कहती जो वचन पढ़ो, प्रार्थना करो तो खो जाओ, भूखे प्यासे हो जाओ, डिमांडा ना करो, डिमांड से मंगो। खुदा तेरी की डिमांड है, मेरी तो डिमांडा बहुत ने, जिड्डा वड्डा संसार है, डिमांडा मेरी पिता तेरी की डिमांड है, प्रभु तेरी इच्छा की है और पुत्र आत्मा उतर आएगा पूरियां करने वास्ते। आमीन आमीन। क्यों पूरा करना आएगा हॉली स्पिरिट? ना तो मेरे बल नाल ना शक्ति नाल, तुसी साबित कर रहे हो अपनी प्रार्थना द्वारा, अपने शब्दां द्वारा। किने जन समझ सकते इस गल में? यस। तुसी अपनी इच्छा नहीं दस रहे हो, बल्कि प्रभु की इच्छा पूछ रहे हो ना। मतलब तुसी निर्बल हो, दीन हो, हम्बल हो सकते, प्रभु को मांग रहे हो कि प्रभु मैंने ताकत दे, मैं तेरे काम कर सका। मेरे काम तो बहुत ज्यादा नहीं, मैं जोर लगा लिया, मैं हार चुका। हाँ प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरा करूंगा, वो भी तेरे आत्मा के द्वारा, और तू मेरी सहायता करेगा। दाऊद क्यों हर बार कहता सी प्रभु, हालांकि परमेश्वर कहने तो जित जाएगा, दाऊद तो जित जाएगा, उन्हें पता मैं जित जाना क्योंकि परमेश्वर ने क्या है। लेकिन की मंगदा? कहता नहीं प्रभु मैंने किस रास्ते जाना है, इन्हें मतलब वो हॉली स्पिरिट में मांग रहे। किने जन समझ गए नहीं? जिन्नी भुख और प्यास पवित्र आत्मा दिखाओगे वो उतर आएगा। अब हॉली स्पिरिट कुछ चीज़ां सारी लाइफ में डिजर्व करता है, कुछ मंगता है, कुछ इच्छा है सारी लाइफ तो जो असी नहीं पूरियां करते। किते ना किते असी उन्हां चीज़ां इग्नोर करते हैं, कठोर होके अपने मन में ये विचार लिया कि मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, मेरी फैमिली की मजबूरी है, मेरे हालातों की मजबूरी है। असी किते ना किते सोच के उस चीज को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि प्रभु दिल की मेरी गल नूं जानदा है, प्रभु मेरी इच्छा जानदा है, प्रभु मेरी चीज नूं जानदा है। प्रभु तो सब कुछ जानदा है, सानूं दस्सण दी भी जरूरत नहीं, कल की होना वो भी जानदा है। लेकिन असी की सैक्रीफाइस कीता,
ये जरूरी है। आमीन। हालेलुया आमीन। प्रभु तो सब कुछ जानता है, जानता कि नहीं जानता? यस वो तो कल की होना वो भी जानता है, लेकिन असी की वो कल जो होना है उसके लिए असी की कीता है, असी की मुल अदा कीता है, ये ज्यादा जरूरी है। यीशु मसीह ने पता है मैंने क्रूस से चढ़ाया जाना है। यीशु मसीह पहले शुरू तो क्रूस से क्यों नहीं चढ़ गए? इन्हें एफर्ट्स करने की जरूरत सी, इन्हें सुसमाचार सुनाने की जरूरत सी। चेलियां ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, प्रार्थना च रहो, जागते रहो, प्रार्थना च रहो, सोना नहीं है, जागते रहो, प्रार्थना करो। क्या जरूरत है? सीधा यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस से क्यों चढ़ा दिता और तीसरे दिन मुर्दे कब्र से अपने आप उठ के आगे क्यों नहीं आगे? सब कुछ करने की क्यों जरूरत पई? ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਲੀਵ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। मैं इस स्टेज पे खड़ा, मैं अपनी जॉब लीव करने बारे सोच रहा हूँ परमानेंटली। अब मैं खाना कितों है, मेरी इनकम कितों होगी, मैंने इस चीज की कोई चिंता नहीं है। और मैं एक सिस्टर ने डिस्कस कर रहे थे, मैंने दिहाड़ी करनी मंजूर है, मैं दिहाड़ी कर लूंगा। अलग विषय और बात की गल्लां ने, लेकिन मुल अदा करना कुछ लेन दे परमेश्वर को खास चीज, खास मसा, खास अभिषेक मुल अदा करना पैंदा है। अब मैं नहीं कहना तुम अपनी जॉब ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰ ਦੋ, हर एक ਦੇ अलग अलग ਕੀ कंडीशंस ਨੇ। अब ब्रदर ਦਾ सवाल है कि मैंने हॉली स्पिरिट टच क्यों नहीं करता? तो पवित्र आत्मा ने, मैंने नहीं पता ये टॉपिक क्यों शेयर नहीं किया, क्यों पवित्र आत्मा ने ये गल कही है कि पूछ इन्होंने हॉली स्पिरिट टच क्यों? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਿਆ? ब्रदर की आवाज नहीं, ना मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता। तो सही क्या? हेलो नहीं, यस पता है। बाइबल कहती है वो अपने नबियों से जाहिर किए बिना कुछ भी नहीं करता। इन्ना मतलब जे परमेश्वर ने आज ये सवाल पूछने लिए किया है, इन्ना मतलब प्रभु दा आत्मा तुहाडे नाल प्यार करदा, परमेश्वर दा आत्मा सुनना चाहता, लेकिन तुहाडी लाइफ कुछ कमियां, कुछ कमजोरियां हो सकदियां ने। परमेश्वर दा आत्मा मैनूं लगदा तुहानूं करना चाहता, परमेश्वर दा आत्मा तुहानूं कुछ देना चाहता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ां ने जिस करके परमेश्वर आत्मा तुहाडे सेंटर नहीं कर रहा। हालेलुया हालेलुया। मैं एक दिन बाइबल विच पढ़ रहा, जिस जगह पे मूसा नूं परमेश्वर ने कहा कि मूसा तेरे लोग बहुत ज्यादा ने, मैनूं लगदा कि स्ट्रेस हो जाता है। कहना हाँ प्रभु मैं बुढ़ा भी हो चुका, मैंने स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि कलीसिया ज्यादा है और मैनूं ना संभाल औखा है, क्योंकि कुछ विरोध करने वाले ने और जे एक विरोध करदा उन्हें मगर ला के 100 जने और रल जांदे ने और मैनूं सारे नूं संभालना डिफिकल्ट है। तो परमेश्वर ने एक प्लान दिता, ऐदा कर सब दे उत्ते सरदार ठा दे 100 बंदे पे एक पास्टर अपनी लैंग्वेज विच उन्हें क्या सीधा कर स्पिरिचुअल सन बना ले। कहना ठीक है, कहना जो तेरा मसा है उन्हें तो ढेल दी, कहना वही मसा जो तेरे के, जो बुद्धि तेरे च काम कर दी, जो आत्मा तेरे च काम करदा उन्हें च काम करेगा। कहना ठीक है प्रभु। और बाइबल कहते ने ऐसा ही किया, उसने 100 बंदा लिया, उन्हें एक तंबू दे विच लै गया। अब जिस तरह साडे स्पिरिचुअल फादर सानूं मसा करदे ने प्रेयर करन दे लई, दूसरे दे लई प्रेयर करन दे लई, सुसमाचार सुनाउण दे लई, अब सुसमाचार भी उन्हें 100 बंदे लाए, लेकिन बाइबल कहती है उसे 102 जने हो गए। 2 जने कितने ने? दूसरे तंबू च ने। 100 जने कितने ने? मूसा दे नाल ने। और बाइबल कहती है मूसा यहोवा पिता की प्रार्थना कर रहा है उन्होंने मसा करन दे लई, पवित्र आत्मा दे उतरन दे लई। तो बाइबल कहती 100 जने पवित्र आत्मा नाल भर गए, जेडे 2 जने बाहर बैठे सी वो भी आत्मा नाल भर गए। इत्तेफाक नहीं होया।
ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਦੋ ਜਣੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਔਰ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਯੋਗੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਯੋਗੇ ਮੂਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਯੋਗੇ ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। आमीन। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਪੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਔਰ ਡੈਪਥ ਤੱਕ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਕਹੋ ਤਾਂ होता ਉਸਦਾ 8 ਚੈਪਟਰ ਉਸਦੀ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 तक। कहावतां 8 प्रोवर्ब 8 और 10 से लेके 15 तक। और मेरा विश्वास है वचन को टच करेंगे। आमीन। मेरी शिक्षा की को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। तो चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, कार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब बाइबल कहती है चांदी नालों मेरी शिक्षा चोखे सोने नालों ज्ञान ग्रहण कर। क्योंकि बाइबल कहती जो धरती बेजान सी बेडोल सी और आखिर से तो ਅਸੀਂ ਜਦ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ 43 ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਬਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ मंडरा रहा जी। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਬ੍ਰਦਰ? ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਸਥਿਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਜਾਂਚਦਾ ਪਰਖਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਅਣਦਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ। याद रखना हमेशा चीज अनदिखियां चीजा परमेश्वर सानू ਉਹ ਦਿੰਦਾ जिस चीज बारे ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। शैतान सानू ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ जो दुनिया से है, क्योंकि ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਰੇਬ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਉਹ ऐसे पर्दे तो लिया अखा के कर देगा तो लगेगा मेरी लाइफ बड़ी सेटल चल रही है, मैं बड़ा प्रेयरफुल हाँ। हालांकि परमेश्वर बार बार बाइबल से लिखा प्रेयर कर, वाउंड की व्यवस्था दिन रात विचार कर, लेकिन शैतान तो की दिखाएगा ये प्रेयर जो तू करी ना सफिशिएंट है, घंटा प्रेयर कर ली बड़ी सफिशिएंट है, सवेरे कर ली बड़ी सफिशिएंट है, हम तो दिन पर लोड नहीं है। दिन पर असि सारा दिन मतलब मन तो छुट्टी है, असि और घंटा प्रेयर सवेरे कर ली और साडा मन करेगा हुण शाम ਨੂੰ जाके करांगे, दोपहर पूरी सो ली क्योंकि छुट्टी अज। सानू की चाहिए परमेश्वर की हजूरी च रहना। शैतान साडे ते पर्दा रख देगा, तू वचन भी बहुत पढ़ ले, 1 घंटे से वचन भी पढ़ लेने, घंटा प्रार्थना भी कर ले, उन्हें पता है कि घंटा तो मैं आगे चल रही है, अब जो दोबारा प्रार्थना करेगा ये मैंने फायर देगा और मैंने जाना पैना। अब थोड़ी लाइफ ठिकाना पाने दे लिए तुहानू झूठ बोलेगा, तुहानू झूठा फरेब देगा, थोड़े मन च गंदे विचार पाएगा और तुसी अलाउ करोगे भाई तू पा ले। क्यों? क्योंकि वो अच्छे सहमति वाले वर्ड्स ने। शैतान तो अच्छे वर्ड देगा, सहमति वाले वर्ड देगा जिसमें इंसान बड़ी आसानी नाल मान लेंगे, जिस तरह हवा और आदम ने बड़े आसानी नाल मान ले। और किस 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 चीज ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, लेकिन बाइबल कहती बड़े आराम ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਦਮ और हवा ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਨਾ ਪੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਐਸੇ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਏਗਾ ਜਾਂ ਐਸੇ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿੰਡ ਪੂੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 5000 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਾਓ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਪਾਪ ਮੰਨੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਨਦੀ ਜਾ ਔਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ। ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੜ ਸਕੋਗੇ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ स्ट्रगल नहीं है। और खुदावंद ने साडे मुखों परमेश्वर आत्मा ने वर्ड निकाल देते हैं। और मैं कंफर्म करने लिए पवित्र आत्मा ने कंफर्म किया, यहोवा की तन कंफर्म किया इन वर्ड्स में। मैं बहुत खुश हूं। आमीन। स्पिरिट नाल ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਔਰ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ मैं तो ऑलरेडी दस चुका, परमेश्वर आत्मा ने क्या आदम को बहुत ज्यादा अधिकार थे। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ परमेश्वर ने पौलुस से जाहिर किया। पौलुस पहले जो आदम से वो शरीर द्वारा मिट्टी द्वारा बनाया गया, दूसरा आत्मा द्वारा बनाया गया। दोनों के फर्क यही थी कि पहले ने पाप किया, दूसरे ने पाप को मिटाया। इन्हें मतलब दोनों सामर्थी थी। हालेलुया हालेलुया। कुछ भी अपने आप नहीं ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਲਾਇਕ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੇਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਫੀਮੇਲ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਬਿਗ ਦੇਖਣਾ, ਬਿਗ ਬਿਗ ਮਿਰਾਕਲਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਬਿਗ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਹਾ, ਚਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਚਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਚਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੋਮਨ ਨੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਔਰ ਗੋਲਡ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਗੋਲਡ ਔਰ ਚਾਂਦੀ ਜੋ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚੋਖੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਬਦੌਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਿਖਵਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। रसूला ने प्रार्थना की थी, की प्रार्थना की थी, पिता बचा ले, पिता बचा ले। नहीं, पिता तेरी मर्जी पूरी हो जाए। पिता लोग जो बाहर खड़े विरोध से तेरी शक्ति जान लें। एली प्रार्थना की थी, प्रभु ये मेरी ताकत जान लें कि मैं आग उतार सकता। उसने क्या पिता वेदी जलनी चाहिए कि जान लें तू यहोवा पिता। उसने नहीं कहा कि मुझे जान लें मैं एलिया। हालेलुया हालेलुया। ठीक है। उसने की चैलेंज थी उसका, एलिया का पता कुछ? यस और नो? यस। ठीक है। परमेश्वर तेरी तेरी सामर्थ में जान लेना और जान लेना कि तू ही जीवित परमेश्वर है। रसूल ने क्या पढ़ा?
तेरा आत्मा उतरे, जो लोग विरोध खड़े ने जान लें तू ही परमेश्वर तो परमेश्वर है। और जिन्ने प्रभु लोग इकट्ठे हुए मारने वास्ते, ये पिता तेरी सामर्थ देखने और एक करे प्रभु छूछे हथ ना जाने, प्रभु तेरी आत्मा में पर के जान। और बाइबल कभी कदर होंगी, फिर रिस्पैक्ट आंदी है। एक क्रिश्चियन मुंडे दे विच, क्रिश्चियन कुड़ी दे विच और एक स्पिरिचुअल आत्मिक मुंडे कुड़ी च जमीन आसमान का फर्क है। स्पर्श नहीं है, आत्मा नहीं उतरता, आत्मा गल नहीं करता। वचन पढ़ते हो लेकिन वचन की समझ उन्हीं तक नहीं आएगी। मैं भी तुम दसा, मैं अपनी तुम टेस्टमेंट दी लेकिन शायद तुम समझ नहीं आई होगी। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੰਗੜੇ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਨया ਨਿਯਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਏ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। और मैंने किसी ने एडवाइस किया कि मैं देखना कर मेरी छोटी बाइबल दूजा कोई वड्डी है, चलो ठीक है, ऐसे तैसे करके मैं फिर एक बाइबल ली, वड्डी बाइबल ले ली। हम वड्डी बाइबल खोल लिए तो भाई हम कुछ ना कुछ तो ऐसा वचन मिलेगा जो शरीर के तौर से नहीं समझा जा सकता, जो फिर परमेश्वर आत्मा दस सकता है, जो सानू टच करना है, जिसने सानू हील करना है, जिसने डिलीवर करना है, जिसने सानू उस लेवल तक लेके जाना जिसलिए ਅਸੀਂ बनाए गए हैं। अब होया कि मैं बाइबल चक के चला गया अपने सीनियर्स को, उस परमेश्वर दास को जो सन प्रीच करती। मैं पाजी समझा दो वचन, पाजी ने समझाते। एक दिन 11-12 बज जाने रात में, चलो जी करे आ गए। फिर रात में आप खुद ही प्रेयर करनी, जिदा भी आनी, टुटी फुटी जिदा भी प्रेयर करनी आनी, थोड़ी बहुत जिदा भी सुननी, उत्थे मीटिंग दे विच उत्थे जिदा बंदगी करनी, जिदा सुननी करनी, उदा प्रेयर करनी, जिदा समझ लागी नहीं तो ठीक है। जो वचन च प्रेयर करने भी नहीं दसी गई थी, मैं सच कह रहा, मैंने प्रेयर करनी नहीं दसी गई थी किदा प्रेयर करते, बस इतना पता। फिर मैं एक दिन वचन पढ़ रहा, पढ़ते लिखा सी प्रभु वाली प्रार्थना ए वाली है। मैं ठीक है, चलो ये पढ़ना शुरू कर दिता, उसके अकॉर्डिंग बोलना शुरू कर दिता। पहले तो मैंने याद नहीं होंदी सी, हफ्ते भर लग गए मैनू वो सिर्फ उन्नी प्रभु वाली प्रार्थना याद करने के लिए। मैं सच कह रहा, मैंने याद नहीं होंदी सी। मैं बाइबल खोल के याद करना, लिख के याद करना, जिदा अपना देसी नुस्खा है, किसी काम को याद करना लिख के करना। मैं उधर लिखना मैंने नहीं याद रहा, थोड़ा होना। अब मसला इस चीज ऐसे कि मैंने सारे वचन क्यों नहीं समझ आते, थोड़े क्यों आते। मैं गया फिर एक दिन और मैं समझ के वापस आने लगा, मैं सवाल कर बैठा और सवाल कर नहीं बैठा, वो इतफाक नहीं सी, वो एक प्लान सी। मैं क्या भाजी तुम सारे वचन कितों आ जाते हैं? वो कहना पवित्र आत्मा दिंदा। मैं ये तो नवी चीज सुनने मिल गई, पवित्र आत्मा भी कोई दिंदा। मैं ये तो नवी चीज सुनने मिल गई, हॉली स्पिरिट बारे नहीं दसिया सी। एक ही बात इन्ना वड्डा हो गया, हजे तक मैं हॉली स्पिरिट नहीं सुना, पवित्रता ही सुना, पवित्र सुना, पाप सुना, शैतान भी सुन लिया कि पुठे पर काम करांदा, परमेश्वर बारे भी तो जान लिया कि हाँ वो रब नूं परमेश्वर कहंदे ने, ठीक है, गॉड, ठीक है। चल ये भी सुन लिया कि यीशु मसीह परमेश्वर है, क्योंकि मैं उस टाइम की गल कर रहा जो मैं नवा मसीह दे विच सी। विचार इधर होंदे बंदे दे मन विच। अच्छा अब हॉली स्पिरिट की है? अच्छा ये सवाल मन में आ गया। मैं कहा ठीक है जी, कभी बिना हॉली स्पिरिट तो समझ नहीं आती। मैं कहा हुण की करा? फिर अगले दिन गया तो मैं क्या मैनू भी वचन समझ आने चाहिए इस तरह। कहना मैं नहीं समझा सकता, जा तुर जा। मैं एक गल थोड़ी हुई, मैं तुसी परमेश्वर दास हो, कहना मैनू भी काम करने, मैनू भी रेस्ट करने दी, मैनू भी प्रार्थना करने दी, जा अपने रूम च जा, परमेश्वर मैंने बुद्धि दे तेनों समझाणगे। मैं सीरियसली दसा, मैं उस रूम तो सामने रोंदा अपने रूम च आया, रोंदा मिन्नतां कीतियां, कहते मैं नहीं समझा सकता, परमेश्वर बुद्धि देगा। रूम दे विच आए, रो रहा, बाइबल ते सिर रखा, रो रहा। मैं फर्स्ट टाइम सी जो हार्टली प्रेयर की परमेश्वर सामने, फर्स्टली। हालेलुया।
हालेलुया मैं रो रो के प्रार्थना कर रहा मैनू नहीं पता प्रभु मैं तेरे नाल गल करनी है और मैंने जानना है कि तू कितना सामर्थ है मैंने जानना है कि हॉली स्पिरिट की है मैंने जानना है कि आत्मा किदा तुझा मैनू नहीं पता मैं इदा गल कर रहा था पंजाबी च मैनू नहीं पता मैं किसी और कोई गल गुल नहीं करनी मैं गल करनी तो प्रभु तू जीवित परमेश्वर है तो उतरिया मेरे नाल गल कर मैनू नहीं पता मैं रो रो के बुरा हाल कर लिया 12 बज गए 1 घंटा लगातार मैं इसे चीज से प्रार्थना करता रहा कि प्रभु मैंने किसी ना कोई गल नहीं करनी जे करनी तो परमेश्वर जे तू परमेश्वर है तो उत्तर आ मेरे गल कर और मेरे लिए जो मैं बाइबल ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖੋਲੀ ਹੈ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਕਿੱਥੋਂ ਖੋਲਦੇ ਕੀ ਪੜਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ फर्स्ट टाइम अपने आप बाइबल में खोली वो भी अपने हाथों नाल मैंने ना पता मैंने कोई जोर नहीं लगा नहीं था हाले कि किसी चीज ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ એનર્ਜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜੋ ਬਿਨਾ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ फर्स्ट टाइम होया मिला कि ऐसा रेमा वर्ड जो हिला देता है आमीन हालेलुया जिसने मैनू हिला दिता मैं क्या सचमुच है कोई परमेश्वर है कोई परमेश्वर है पवित्र आत्मा जो गल करता है फर्स्ट इनकाउंटर है मेरा हॉली स्पिरिट में फर्स्ट इनकाउंटर अब दूसरा दिन मेरा किदा दा गया जो हॉली स्पिरिट उतरा था प्रेयर कर रहे जवान जी अद्धी रात को 12-1 बजे भुख सी एक वचन पढ़कर प्रेयर कर रहे हैं और मेरी दरवाजे खिड़कियां जो कि लॉक थी तो वचन से पढ़ा था कि दरवाजे खिड़कियां बंद करके प्रेयर करनी है जो बंद थी ऐसा लग रही थी खोल के बंद हो रही है खिड़कियां ऐसा लग रही थी कि बाहर पता नहीं कितना बड़ा तूफान आ गया होंगे मैं सच कह रहा और मेरी अलमीरा की कोई चीज जिदा कोई जानवर काढ़ और जानवर बाहर निकल काला पै रहा है और मेरी अलमीरा ऐसा कर रही है लेकिन मैं प्रेयर दे विच मैं प्रेयर दे विच क्योंकि मैं एक मन हो चुका सी परमेश्वर नाल उस पवित्र आत्मा नाल क्योंकि जो उनका स्पर्श सी वो कुछ ज्यादा जबरदस्त सी आमीन आमीन और तो बाहर आना मेरे लिए मुश्किल सी क्योंकि उसने क्या तूने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा उसने छुड़ा दिता सी मैनू उस बंधना तो उस कंफ्यूजना तो उस शक वाली निगाह तो मैं शक करता सी लेकिन परमेश्वर मैंने छुड़ाया क्यों क्योंकि मैं इस वचन की ताकत ਨੂੰ समझा उसने कि हाँ चांदी नालों मेरी शिक्षा ਨੂੰ सोने नालों मेरे ज्ञान ਨੂੰ ग्रहण कर किता ग्रहण रिजल्ट मेरी लाइफ में ਤੁਹਾਡੇ सामने आमीन आमीन ऐसा नहीं कि तो प्रार्थना हो और जिथे मर्जी कोई बंदा बैठा मैं सच कह रहा मैं यीशु मसीह तो डर के कह रहा और हॉली स्पिरिट की प्रेजेंस कह रहा इथों प्रार्थना होगी जिथे मर्जी कोई बैठा मैं कह रहा वो हील होगा इंस्टेंटली हील होगा जिंदगी मर्जी प्रार्थना कराओ आज कराओ हुणे कराओ राइट नाउ इंस्टेंट हीलिंग होगी यीशु मसीह नाम जी मैं सच कह रहा आमीन हालेलुया हालेलुया बहुत सारे टेस्टिमनीज हैं बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं लेकिन कुछ चीजा ने जो सानू हॉली स्पिरिट को दूर कर दिया बाइबल का मैं हमेशा चीज सुलेमान च एक कोई कमी सी उसदा कमंडी होना कमांड में चला गया आप सोचो एक व्यक्ति ने सब चीजें प्रोवाइड कर दी एक व्यक्ति जो बहुत इंटेलिजेंट है इंटेलिजेंट नाल होने दे नाल उनके कोल बहुत सारी जायदाद है अब उन्हें जरूरत है किसी चीज की नहीं जरूरत मेरे हिसाब में बाइबल कहती दाऊद ऐसा होया जिन्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी परमेश्वर के बीज ली बो दी जो बड़ा बीज कर सके बाइबल कहती परमेश्वर ने यहोवा पिता ने सुलेमान को डबल करके दिता किसके बीज द्वारा दाऊद के द्वारा दाऊद बाइबल कहती दाऊद अपने जींदे जी बड़ा बीज बो गया ताकि उनकी पीढ़ी कट सके अब सुलेमान की कर रहे हैं बोन के बजाय इकट्ठा कर रहे हैं कितने जने समझ चुके हैं यस दाऊद की लाइफ ब्लेस्ड रही लेकिन बाइबल कहती सुलेमान की लाइफ ट्रबल च रही और ज्यादा साल नहीं कट पाया स्पिरिट नु बना के रखना पैंदा हॉली स्पिरिट बना के रखनी पैंदी सब दी जिंदगी च हॉली स्पिरिट काम नहीं करता और कोई नहीं हॉली स्पिरिट बाइबल कहती बिना पवित्र आत्मा के तुसी पिता दे अगे प्रार्थना भी नहीं कर सकते सही करना हालेलुया हालेलुया हॉली स्पिरिट केड़े शरीर दे विच टिकदी है
ਕਿਉਂ ਜੋ ਬੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਭ ਮਨੋਹਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਵਸਦੀ ਹਾਂ, ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਵਸਦੀ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲ ਕੇ ਕੱਢਦੀ ਹਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਸੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ परमेश्वर का डर बुराई नाल नफरत करने बराबर है, जेलसी करने बराबर है। और तुहाडे अंदर जेलसी नहीं है तो तुसी सच्चे मसीही नहीं हो, स्पिरिचुअल मसीह नहीं हो। पाप प्रति जेलसी नहीं है तो मैं कह रहा अद्धे अधूरे भी नहीं हो तुसी मसीह। अपने आप को कदे क्रिश्चियन ना कहना फिर जे तुहाडी पाप नाल जेलसी नहीं है, अपने आप को क्रिश्चियन ना कहना। इस तो चंगा है कि तुसी अपने आप को जो कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग रिलीजन के हिसाब नाल जो सानू टैग दिता गया है, जो ईसाई कहते हैं, तो अपने आप में ईसाई कह लियो, पर क्रिश्चियन ना क्यों। क्रिश्चियन वर्ड ब्लेस्ड वर्ड है, एक ईसाई वर्ड रिलीजन वर्ड है, याद रखना। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि क्रिश्चियन वर्ड एक क्राइस्ट के करैक्टर में डिस्क्राइब कर रहा है, और ईसाई एक ऐसे व्यक्ति में डिस्क्राइब करता है जो संसारिक रीति चल रहा है, जो संसार के मेले ना लड़ता या फाइट करता या और उसे जो फंसया रहता है और उनके स्ट्रेस जींदा है। वो ईसाई जो लोगों के हिसाब में चलता है, परमेश्वर के हिसाब में नहीं। बाइबल कहती परमेश्वर जो डर रखता है वो पाप ना नफरत करेगा, गुस्सा करेगा, जेलसी करेगा। हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ मूसा प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਲ एनकाउंटर ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ एनकाउंटर ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ यस, कत्ल किया। बाइबल कहती ने साबित किया कि वो पाप न जेलसी करता है। बाइबल कहती ने इजरायली ने मारा तो उसने बाइबल कहती ने मिस्री का कत्ल कर दिता। काम तो गलत किया, लेकिन उसने साबित किया, शीरन तौर पर साबित किया कि पाप नाल जेलसी करता है, पाप के लोगों नाल जेलसी करता है। जो वो ना करता तो परमेश्वर कदे ना चुनता। हालेलुया हालेलुया। उसने किसी से कत्ल किया तो उनके लिए सफर। अब तो ये देखो, परमेश्वर ने एक हुक्म को लिखवाया और उन्हें दिता भी कि अब दोबारा खून नहीं करना। हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब कि अपने आप का लाइफ नहीं कुछ होगा। परमेश्वर का डर सारी जिंदगी सब तो पहली प्रेफरेंस है, और पाप ना नफरत करना। जो तो पाप ना नफरत करना लगे तो कदे भी पाप से नहीं गिरोगे। जो पाप ने साड़ी लाइफ होगा, क्लीन लाइफ होगी, प्योर लाइफ होगी, कदे मक्खियां नहीं बैठनगियां। जो तो मक्खियां नहीं बैठनगियां, सब कुछ अच्छा होएगा। और अच्छी जगह पे पवित्र आत्मा बिना कुछ दसे अपने आप उतरदा है, उसे फिर जोर लगाने की जरूरत नहीं पैंदी। आमीन आमीन। उसे जोर लगाने की जरूरत नहीं पैंदी। कमांड, हंकार, बुरी चाल नाल, पुठे मुंह नाल मैं वैर रख दिया। कौन कह रहे? पवित्र आत्मा कह रहे। हंकार नाल, कमांड नाल, बुरे चाल नाल, पुठे मुंह नाल कौन वैर रखता है? पवित्र आत्मा। वो गुस्से हो जाता पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया। मत जन्याई मेरी है, समझ मैं हाँ, सामर्थ मेरी है। परमेश्वर का मेरे राज्य किंदे चे गल्ला में से निकाल के किंदे चे सामर्थ्य चे। परमेश्वर ने क्या मेरा राज, मेरा किंगडम किंदे चे हॉली स्पिरिट चे, सामर्थ्य चे। इसलिए यीशु मसीह ने क्या ताज तुसी आत्मिक बन सको। लिख लो आज नवा रेवलेशन। यीशु मसीह ने क्या मेरा राज, मेरा किंगडम किंदे विच गल्लां विच नहीं, किंदे चे सामर्थ्य चे। सामर्थ का नाम की है हॉली स्पिरिट। यीशु मसीह मुर्दे जीव थे किन द्वारा? पवित्र आत्मा द्वारा, जिसका नाम ही पवित्र आत्मा है। हॉली पवित्रताई वाला आत्मा। और किदा एक्सपेक्ट करते हो कि असि सिगरेटा पींदे होइए, असि सिगरेट पीन वाले लोगों ने तुरदे होइए, गंदी कम्युनिटी च रहिंदे होइए और पवित्र आत्मा साडे नाल रहे? ऐसा हो नहीं सकता। हालेलुया
हालेलुया जिन्हां घरां दे विच असीं गंदे काम करदे, गंदी चीज़ां देखदे हां और सोचिए कि पवित्र आत्मा उत्थे वास करेगा, उस नाल साडे नाल सोएगा, पवित्र आत्मा मेरी रखवाली करेगा, पॉसिबल नहीं है। सोचो कि जिस बिजनेस में गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड बनाए हैं और सोचो मेरा बिजनेस साल टॉप जाएगा क्योंकि मैं क्रिश्चियन हाँ, भूल जाओ, भूल जाओ। हालेलुया। हालेलुया वैल्यू कदों पई पॉलिस की आत्मिक बनने तो बाद नहीं तो हर गली का बंदा, हर गली का कुत्ता भी भौंकदा सी, ऐ किधर आ गया, ये तुहानू मारेगा। कुत्तियां ने भी बट्टे मारदा होना फिर इसलिए भौंकदे सी। लेकिन बाइबल कहती आत्मिक बनया वो भी शांत ने, पहचान लिया उन्होंने ये परमेश्वर का बंदा है। आमीन। आमीन मैं एक छोटी कसम बड़ी अजीब जी है, मजाक ही लगेगी। मैं साडी जो ड्यूटी लगी सी पिंडां दे विच, साडे टीचर्स ने जाना और एक बार क्या कुत्ता मगर लग गया, साडी टीचर की चप्पल उनके मुंह दे विच और एक चप्पल लेके दौड़दी दौड़दी बस विच बैठ गई और एक चप्पल कहती चलो दान की और कुत्ते चप्पल नहीं दी। लेकिन गल ये मैं उत्थे खड़ा, मैं हिले ही नहीं, मैं नहीं हिलिया। और एक कुत्ता एक बार एक और पिंड विच ऐसा कुत्ता जो एक आदमी दे लत तक आंदा है, कमर तक आंदा है, एडा बड़ा कुत्ता, एडा स्ट्रॉन्ग, कोई बड़ी रिच फैमिली थी, पेंडू सी, तगड़ी फैमिली थी, मतलब जिन्होंने खुराक चंगी देती थी। डॉग भौंकदा है और मुंह च लारा, मतलब भूखा है, हल्का है और दौड़दा आ रहा है। सीरियसली दसा मैं एक कदम पीछे नहीं लिया, एक भी, और मेरे मन से डर नहीं है। और वो कुत्ता दूर भौंकदा रहा, उसकी हिम्मत नहीं पई वो कट सके या मेरे नेड़े आ सके। अब होया क्योंकि परमेश्वर ने क्या, मैं तेनू समुंदर दी मछलियां दते, हर रिंगण वाले जानवर दते, रेड़न वाले आकाश के पंछियां ते, पेड़ पौधे की देना अधिकार देना। और मैं वो वचन जानता सी, उस अधिकार में खड़ा रहा। बाकी कहते तेन कट जाता, टीचर मैंने गुस्से हो रहे तेन कट ये वो। अब मैं उस टाइम मैं मच्योर नहीं सी आत्मा कि मैं उस टाइम डायरेक्टली जवाब दे सकता, क्योंकि इन्होंने नॉनसेंस गल लगनी सी, क्योंकि वो आत्मा च मच्योर नहीं ने। सिर्फ एक आत्मिक बंदा समझ सकता है। और मैं इस गल का जवाब देना सही नहीं समझा, मैं कि मैनू डर नहीं लगता। और उदों सब नहीं लगता सी ये मेंटली अपसेट है। मैं सच कह रहा, मेरे क्लासमेट जाने इस गल को, सब को लगता सी ये मेंटली थोड़ा अपसेट है, एक गल्लां भी अजीब दियां करता है, ये कुछ ज्यादा ही बाइबल में खो गया है, या ये ज्यादा स्पिरिचुअल हो गया है, ये थोड़ा मेंटली अपसेट है। मैं सीरियसली कह रहा, मैंने कोई शक्तिमान कहना सी, कोई गंगाधर कहना सी। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन सब तो ज्यादा प्रेम करता हूँ, सब तो ज्यादा। मैं सच कह रहा। आमीन आमीन और मेरे जीवन में परमेश्वर ने सब तो पहले की निकाला, कमांडर निकाला है। मैंने नहीं पता मैंने किस चीज का कमांडर, लेकिन मैं अपने आप से कमांडी थी, अपनी सुंदरता ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, शायद हो अपने शरीर ਨੂੰ ਲੈ के, अपने आप से रहना, कमांडर से रहना, गुस्से से रहना। मैं बहुत गुस्सा करने वाला था, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे घर के जानते हैं मेरा गुस्सा बहुत जबरदस्त है। जिस दिन गुस्सा जिस चीज से आ गया, फिर वो चीज गई, हाथों गई, वो नुकसान ही है, वो नहीं बचेगी। मैं अपने कॉलेज के 1 साल ਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 फोन तोड़े ने गुस्से ਵਿੱਚ आ के। किस नाल गुस्से होया? अपने पेरेंट्स नाल। उधर कॉलेज का प्रेशर, कॉलेज में गुस्से, करो प्रेशर, तुम गल नहीं सुनते, चलो गुस्सा आया, चलो तोड़ दिता। डैडी ने फोन किया, डैडी कहते कोई गल नहीं, टाइम करना, चलो गुस्सा आया, फोन तोड़ता। और एक दिन अमेजिंग गल सुनो, हासिल गल सुनो, मैं घरे मैच देख रहा और मेरी मदर कहती है मैंने सीरियल देखना है, और मैं की कर रहा, डिश में डंडा मार के घुमा रहा, और फिर उन्हें चला गई और मैंने फिर उस सीरियल का सीन दिस गया और मैंने इन्ना गुस्सा आया, मैं चक के टीवी तोड़ दिता। इन्हें मतलब मैं गुस्से खोर सी। आज भी मेरी फैमिली डरती है, तो इस गल तो डरती है गुस्सा ना करे, लेकिन अब वो समझ चुके ने ये आत्मिक बन चुका है, अब गुस्सा जा चुका है। आमीन आमीन हंकार मैंने नहीं पता किस चीज का, कि शायद मैं सुंदर ना, शायद मैं इंटेलिजेंट हाँ, लेकिन हमेशा गाला पईयां ने। मैं सच कह रहा,
मैं अपनी क्लास विचों टॉपर रहा शुरू ਤੋਂ, लेकिन ਮੈਨੂੰ कदे भी शाबाशी नहीं मिली। मैं शाबाशी ਲਈ ਮੈਨੂੰ लगता सी ਮੈਨੂੰ शाबाशी को बोले, ਮੈਨੂੰ कोई वाह वाह करे, ਮੈਨੂੰ कोई कापी ਤੇ वेरी गुड लिखे, ਮੈਨੂੰ खुशी होनी, अंदरों खुशी होनी। जे ना किसी दे नंबर चाहे दूसरे ਦੇ ਘੱਟ ਆਣ, लेकिन उन्हें शाबाशी मिल रही है। पता नहीं वो शायद देखने से सुंदर ने, शायद उन्होंने परसनैलिटी इदा दी है। मैनू कोई शाबाशी क्यों नहीं दिंदा? मेरे अंदर कुछ जैलसी सी, मैनू क्यों नहीं कोई कहता? मैनू सुनने की आदत सी कि मैनू कोई शाबाशी दे, मैनू कोई उच्चा औहदा दे, मैनू सुन इस वर्ड सुनने अच्छे लगते थे, लेकिन फिर भी नीचे रहना पिया शुरू तो। मैं सच कह रहा, मैं अपने पेरेंट्स में चंगा काम करके दिखाना डांट, अच्छा काम करना फिर डांट। मैं कहना मेरे नाल इदा क्यों है, मेरे नाल इदा क्यों हो रहा है और होंदा क्यों है? रब मेरा साथ ने, मैं रब नूं गालां कढनियां गंदियां। हालेलुया हालेलुया। उसने पूरी चाल नाल, पर एक पॉजिटिव चीज थी मेरे अंदर। लड़के मेरे जो क्लासमेट थी, लड़कियां वाली गल्लां करते थे, मैंने समझ नहीं आती थी बोलते की नहीं। ये लड़कियां दी गल्लां हुंदियां किदां दी मैंने समझ नहीं आती सी। मैं सच कह रहा, मेरे पड़ोस से जो मैं प्लस 2 तक पहुंच गया, मेरे पड़ोसियां ने कुड़ियां वाली गल्लां करनियां, कोई उल्टियां पुल्टियां गल्लां करनियां। मैं सच कह रहा, मैं विस्तार खड़ जे 5 जने खड़े, 5 ਨੂੰ समझ आ, उन्होंने समझ आ जाएगी, मैनू नहीं समझ आनी ये किदां दी गल हुंदी है, कित्थों करदे ने, किवें करदे ने, की सोच के करदे, मैनू समझ नहीं सी। परमेश्वर ने यही मेरे मन से पॉजिटिव पॉइंट। आमीन आमीन। मैंने नहीं समझ लगती थी। कोई 4 जने कोई गल करके तुर जाने तो फिर नहीं पता लगना, जिन्हें कह लो बिल्कुल एक खड़ा कर देता हुए, एक विच डफ बंदा खड़ा कर देता जिन्हें सुनता नहीं बोला है और उन्हें पता ही नहीं हो की रहा। तो मैं इदा का सी। बट जो मसीह में आया, आज एक टेस्टिमनी सुन लो। आज मेरे जो हॉस्पिटल स्टाफ है इंस्टाग्राम लाइव उन्होंने किते ज्वाइन कर लिया, मैंने नहीं पता कुछ ज्वाइन कर कहते सानू तो लगता तू ऐसा अपनी टपलियां मारदा, मतलब कि गल्लां करदा सियाणियां, पर सानू समझ नहीं लगती तू की बोलदा है। लेकिन जो आज तो लाइव मीटिंग कर रही थी और सानू यकीन ना हो कि तू बोल रहे हैं, क्योंकि इन्नियां सियाणी गल्लां कोई बोल ही नहीं सकता। मैं सच कह रहा, ये वर्डिंग से स्टाफ दी। हालेलुया हालेलुया। आप दूसरी भी इस गालों जानते हो, परमेश्वर क्या बोलने वाले तुसी नहीं, मेरा आत्मा है। हालेलुया हालेलुया। अब मैं कहूँ कि मैंने भी आत्मा का इनकाउंटर नहीं होया तो मैं अपने आप ਨੂੰ मूर्ख बना रहा और मूर्ख बन भी रहा। परमेश्वर आत्मा शोन दे ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ कुछ ਮੰਗਦਾ है, कुछ सैक्रिफाइस ਮੰਗਦਾ है। क्या ਤੁਸੀਂ मुल अदा करने तैयार हो? तो परमेश्वर आत्मा आज ही छुएगा। यस आमीन। जिस दिन ਤੁਸੀਂ सब तो ਉੱਚੀ आवाज आमीन सुन रहे हो, एक गैर भाषा च सिंगिंग भी करनी, तुम पता? जिस सिस्टर ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ आवाज ਵਿੱਚ आमीन सुन रहे हो, ਇਹ ਸਿਸਟਰ गैर ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। अपने आप तो गैर भाषा नहीं आती, क्योंकि एक आत्मिक वरदान है। गैर भाषा आना है एक आत्मिक गिफ्ट है, एक गॉड गिफ्ट है, एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है। यस। विजन ग्रोथ, क्योंकि मैं एक सिस्टर दी मेहनत जानता। जे मैं तेन अपने पर्सनल नंबर तो जिन्होंने मैंने मैसेज रोज करने हर 5 मिनट पास्टर जी मेरी इंपॉर्टेंट गल सुन लो, मेरी मैं ड्यूटी तो फिर मैसेज आई जाने। और मैं सिस्टर ने क्या भी इन्ने मैसेज ना करने, क्योंकि बहुत सीरियस हो चुके हैं। मैं सच कह रहा, ये इन्ने आत्मा भूखे से हर 5 मिनट बाद मैसेज, पास्टर की मीटिंग कदों है, पास्टर जी फ्री हो, मैं तेन विजन शेयर करना है, मैं ये वक्त शेयर करना है। हर 5 मिनट बाद कोई टेंशन नहीं कि पास्टर ड्यूटी तो होंगे, घरे होंगे, मीटिंग तो होंगे, कितने होंगे। मीटिंग कोई लीव नहीं करनी, कोई मीटिंग अटेंड किए बिना नहीं रहना, चाहे जिथे मर्जी हो। मैं सच कह रहा, इन्नी पोखर प्यास मैं फर्स्ट टाइम लाइफ देखी थी।
और जो prophetic word है ने और सब तो पहला परमेश्वर आत्मा काम करने वाला इस सिस्टर की लाइफ में मैं सच कह रहा Yes, Sami. बड़े बड़े फेल हो जाते हैं जो सिस्टर ने टाइम नल जो परमेश्वर आत्मा ने टाइम नल हजे एज कुछ ज्यादा नहीं परमेश्वर जो देता है और मैं दावे ना करना मैं 100% गारंटी ना करना परमेश्वर आने वाले दिनों में एक सुपर डुपर ब्लेस्ड गर्ल में ब्लेस करेगा मैं सच कह रहा एक किंग जो परमेश्वर वर्ड देता है रेवलेशन दे विच किंग और क्वीन वर्ड इन सिर पे ताज पहनने वाला यीशु मसीह नाम मैं सच कह रहा Me. इत्तेफाक नहीं होंदा हन्या दी स्टोरी सब ने पढ़ी है और सारे जानते ने कि उनकी प्रार्थना विच गड़बड़ी सी ਅਤੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਿਦਾਂ ਛੂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਦਲਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲੈ ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਸੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਤ ਪਾਹਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੈਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਂਗਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਹੋਗਾ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਮੀਨ Amen. ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਕੱਟ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਕੱਟ ਲੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਡੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ और मैनू पता मैं दो महीने मैं जो वापस आ रहा कि मैं पवित्र आत्मा जी मैं क्या करा ऐसा कि मैं 2 महीने सही तरह कट सका मैंने परमेश्वर दास ने 2 महीने का टाइम दिता है हालांकि मैंने पूरी जिंदगी 2 महीने नहीं मतलब तो मैंने पूरी जिंदगी इतना कटनी है पर जो उन्होंने 2 महीने कहने इनके पीछे कोई बड़ा रीजन है अब 2 महीने मेरे लिए एक ही ऑप्शन बची फास्टिंग प्रेयर जब कोई परमेश्वर दास को वर्ड दिंदा है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਮਿਲਾ ਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੋਨ ਨਿਯੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੇ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਭੇਡ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ अब्राहम को एक टाइम मूर्खता लगी होनी अब्राहम तेन कौमा का पिता बनाना है और अपने कारोबार में छड़ दे कहना अच्छा जी कारोबार भी छड़ना पैंदा साडे वांगू उनकी सोच आई होनी कि मैं मूर्ख बन गया शायद मेरे मन का वहम है पवित्र आत्मा साडे नाल गल करदा है चाहे सानू हेजल होए ना होए सानू लोकां वांगू करंट लगे ना लगे लेकिन साडे नाल गल करदा है ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ क्यों नहीं सुनते बाइबल कहती अब्राहम के कोल कहते कई बार दूत आए लेकिन उन्होंने पहचान नहीं पाता सी लेकिन जिसमें आत्मिक अखा खुल गई तो उन्हें पहचान आई कि मेरे को दूत भी आते रहने और मैं कभी देख नहीं पाया जब उन्हें दूत देखे उस टाइम उन्होंने गल की और सारा प्रेगनेंट हुई और दूत हर बार यही मैसेज लेके आए कि परमेश्वर तेन ब्लैस कर जा रहा सिद्ध बन जा सुन नहीं पाता सी हन्या की प्रार्थना करेक्ट होने बाद बाइबल कहती परमेश्वर दास ने परमेश्वर आत्मा पार रहा है कि बोल कि तेन परमेश्वर बेबी ब्लेसिंग कर जा रहा बेबी बॉय ब्लेस कर जा रहा और बाइबल में ऐसा ही होया आज बोलते शायद पास्टर जी ये बोलेंगे मैं आत्मा ने करूंगा या करूंगी आज पास्टर के मन से मैं एक चीज दसना सिर्फ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਬੋਲੇਂਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੀਸਿਯਨ ਲੈ ਕੇ ਆकर ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੋਲ ਸਕੇ जो परमेश्वर आत्मा ना गल कर सके और जान सके कि परमेश्वर आत्मा थोड़ी लाइफ की डिजर्व करता परमेश्वर आत्मा तुम की कहना चाहता है वो की कमियां थोड़ी लाइफ में जिस करके परमेश्वर आत्मा तुम छू नहीं पा रहे
सुसमाचार ਲਈ क्या ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ सुसमाचार नहीं सुनाता। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक बिग रेवलेशन की गल दसी सी। एक दिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सीक्रेट दसे सी कुछ आत्मा ने किदा करना है, वर्शिप किदा करनी है, माफी किदा मंगनी, दसे सी कि नहीं वचन। एक दिन मैं मीटिंग ਵਿੱਚ किन्ना नहीं याद है? Yes. स्पेशल दसे सी ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਸੇ ਪੜੋ, ਕਿਹੜੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ? Yes. ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? Yes. Yes. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. स्पेशल दस्या गया कि आत्मिक जीवन जीण दे लई और आत्मिक वधन दे लई रसूलां नूं पढ़ो, रोमियो नूं पढ़ो, अंजीलां नूं पढ़ो। जे कम्मां नूं नाल करना है तां देखो कि आत्मा तुहानूं टच करदा पढ़दा। Yes. Amen. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल जिद्दां पौलुस सुसमाचार सुणांदा गया, जिद्दां परमेश्वर दे आत्मा दी अगुवाई ते चलदा गया, वो उन्ना ज्यादा पढ़दा गया। और एक दिन आके कहना प्रभु मैं घमंड कर लवां, कहना उदो शैतान दा बच्चा आया, कहना कंडा चुभ गया मेरे, कहंदा ले निर्बल हो गया। तो परमेश्वर कहना तू फिर भी टेंशन ना ले, कहना तेरी निर्बताई च मेरी सामर्थ सिद्ध हुंदी, डोंट वरी। उसने की कहता डोंट वरी, उत्थे मैंने वर्ड मिला सी डोंट वरी। आमीन। Amen. मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो चुकी सी और प्रभु ने मैंने इसे लिए मैं हर बारी जो कोई मैंने कोई रिक्वेस्ट भेजता, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजता, मैंने जो परमिशन वर्ड दिता सी डोंट वरी, मैं इसलिए सब तो पहला तुहानूं डोंट वरी लिख के भेजदा, क्योंकि परमेश्वर ने मैंने वरी नॉट किया, मैंने हर वरी तो हर एक मुसीबत तो मैंने छुड़ाया उसने, और उसने मेरा वायदा किया मैं तुम्हें छुड़ावांगा। आमीन। इसलिए कल मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट आई एक गोविंद ब्रदर दी। अब मेरा बिलीव है जो परमेश्वर ने मैंने लिखा किया और जो प्रेयर रिटर्न में भेजी, मेरा बिलीव है आत्मा उस वेले टच कर चुका सी। अब मैंने नहीं पता कि वो बिलीव कर रहे कि नहीं कर रहे, लेकिन जो मैंने स्पिरिट से दिखाया और मैं जो देखा, मैं हील में देखा, एक चंगे व्यक्ति देखा, एक नॉर्मल पर्सन देखा जिन्हें कोई बुखार नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, और मैं पसीने द्वारा उनके फीवर में जाना देखे आत्मा में। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा पादशाह मेरी सहायता ना पादशाही हाकम करन दे हुक्म चलाते हैं किने द्वारा? पवित्र आत्मा द्वारा। क्यों? अपने आप को साड़ी लाइफ से कुछ भी नहीं होगा। सुलेमान नु बुद्धि सी आत्मा दा वरदान सी, आत्मा दा तू कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो बाइबल के गलत इस्तेमाल करने लग गया तो पवित्र आत्मा के जीवन से उठ गया। बाइबल में शाऊल सामर्थ्य से, बाइबल कहती दाऊद तो ज्यादा उन्हें गोली मार रखे हुए सी ऑलरेडी। लेकिन बाइबल कहती उस टाइम गोलियां सामने शाऊल ने ललकार रहे थे, और बाइबल कहती शाऊल ने पुकारा जा रहे थे, लेकिन गया कौन है? दाऊद। शाऊल क्यों नहीं जा रहा? कहना मैं पाप किया भाई, मैं नहीं जाता, कहना मेरा मन में दोषी करार करता है। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. पवित्र आत्मा उतरे, शाऊल वांगू सानू अंदर आवाज आती है तू पाप किया। पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा, नहीं गल करेगा तेरे नाल, उन्हें मन नहीं तेरे नाल गल करन दा, नाराज है तेरे तो, गुस्से है तेरे तो, क्योंकि तू हॉली स्पिरिट में शॉकित किया। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਤੂੰ ਚੋਕਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। हाँ, बच्चे नाराज हो जाते ना, तो हॉली स्पिरिट कुछ ऐसा ही है। हालेलुया। Hallelujah. हाँ, कुछ ढिल्ला जो बोला हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. अब जब मैं प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने मैंने एक वर्ड दिता सी,
उसने कहा, जो यिर्मयाह पहले चैप्टर पढ़दे हां, उसने कहा इस तो पहला कि मैं तेनों ढिड विच साजिया, मैं तेनों जानदा सां, इस तो पहला तू कुख निकलिया, मैं तेनों वखरा कीता, मैं कौमां लई तेनों नबी ठहराया। ये वर्ड मैं फर्स्ट टाइम सुना सी स्पिरिट द्वारा, होली स्पिरिट द्वारा, कि तेनों नबी ठहराया। और मैं हिल गया कि प्रभु मैंने इन्ना, मैं फर्स्ट टाइम परमेश्वर ने इनकाउंटर है, परमेश्वर फर्स्ट टाइम मेरी गल हुई है, और प्रभु मुझे इन्नी ताकत, इन्ना बल मन दे रहा है और इन्नी हिम्मत दे रहा है कि तू नबी है, तू एक प्रॉफिट है, तू एक दास है। और मैंने समझ ना आए मैं हुन की बोला, परमेश्वर केड़े शब्द धन्यवाद करा, मेरे को कोई वर्ड नहीं सी। मैं क्या, मेरी जो प्रार्थना की गई, दिलों प्रार्थना की गई, उनका उत्तर आया है। जो जीरो करन दे, अपने आप को समर्पित करन दे कि प्रभु तेरे तो अलावा मेरी लाइफ कुछ नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं। पिता जो कुछ करूंगा तेरी महिमा लिए करूंगा, जो कुछ होएगा तेरी महिमा लिए होगा। जो कोई फालतू तो प्रभु इसी वक्त स्टॉप कर दे। मैं इवन दैट, मैं सही दसा, जो मैं आत्मा की प्रार्थना करनी शुरू करती थी, मैं ये भी वर्ड बोलती थी, पिता जिस दिन मैं गंदे रास्ते तुरा तो मेरे अतरंग हो जाए, मेरे पैर पैरालाइज हो जाए। मैं सच कह रहा, मैं इदां दी प्रार्थना करता रहा। पिता जी मेरे हाथ गंदे हैं, हाथ कम्मां वाल अगे वधन तो मेरे हाथ उत्थे उसी वक्त फ्रीज हो जाए, स्टॉप हो जाए, पैरालाइज हो, जो मर्जी हो जाए, लेकिन प्रभु ये गंदे हाथ कम्मां वाल ते ना उठन। मैं सचमुच इदां प्रार्थना करता रहा हमेशा। मैनू अपने अपने शरीर नाल नहीं, मैनू परमेश्वर दे वचन नाल प्यार हो गया सी। जिस दिन मैंने परमेश्वर फर्स्ट गल की, मैं कहा नहीं, जो दुनिया तक जो कोई परमेश्वर जीवित परमेश्वर है तो यीशु मसीह है, जो मेरा डायरेक्ट गल करता है। जिसने फर्स्ट टाइम एक ऐसे व्यक्ति ने गल की जो घमंडी है, जो अपने आप मूर्ख है, जो अपने आप से निकम्मा है, जो किसी निगाह में कुछ है नहीं, जिसकी वैल्यू नहीं, लेकिन परमेश्वर मेरी वैल्यू दिखाई है, तो एक नबी है। आमीन आमीन। मैं एक मूर्ख जा जिन्हें समझ नहीं लगती कौन की गल्ला कर रहा है, और परमेश्वर कहना तू नबी है। किड्डी महान गल की, तू एक नबी है, तू एक प्रॉफिट है, तू एक दास है। किड्डी बड़ी गल है कि फर्स्ट टाइम परमेश्वर ने कुछ मेरे लिए मुंहों बोले तो की बोले तू नबी है। और परमेश्वर मैंने नहीं केवल क्या कहानी में क्या, जाओ लोगों चेले बनाओ। परमेश्वर ने अपने दासन भेजा, अपने लोगों भेजा, परमेश्वर ने अपने वचन भेजा, जाओ लोगों चेले बनाओ। तो मतलब तुम पहले चेले बन चुके हो, समझे इस गल को। रसूल बन चुके हो, तुसी प्रॉफिट बन चुके हो, पास्टर बन चुके हो, विश्वासी बन चुके हो। अब आत्मा न करना बाकी है। साडी जो एडमिशन हो इंडिया से स्टूडेंट बन जाने, लेकिन स्टूडेंट पास आउट कौन है? जो वो चीज़ां पढ़ता है, प्रैक्टिकली करता है और अच्छे नंबर ना पास होता है, वही स्टूडेंट कहलाया जाता है। वही एक पास स्टूडेंट कहलाया जाता है। फेल नहीं, इंटरमीडिएट नहीं कि विचकार फंसया कि एडमिशन होगी। स्टूडेंट नहीं केवल एक स्टार, जिनमें स्टार लग चुके हैं, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार भी कि पास हो गया। कौन है वो? जो सब कुछ एक्टिविटीज में करता है। आमीन आमीन। इसलिए बाइबल कहती कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेके आंदा है। जिन्ना अपने आप को परमेश्वर में समर्पित करोगे, जिन्ना अपने आप अपने फेथ को परमेश्वर दिखाओगे, वो उन्ना ज्यादा आत्मा थोड़ी लाइफ में रिलीज करता जाएगा और आत्मा तो लाइफ काम करता जाएगा। आज हो सकता कोई 30 गुना फलन लेके आंदे हो, इसलिए आत्मा का स्पर्श ना पता लगता हो। बाइबल की जिस जगह परमेश्वर आत्मा उसे आजादी है। हो सकता है कि थोड़ी लाइफ परमेश्वर आत्मा 30 गुना काम कर रहा है और अद्धी आजादी थोड़ी पेंडिंग है। उस पूरी आजादी में लैंड के लिए आत्मा के नाल और जुड़ना पड़ेगा। अपने जीवन में और संघर्ष वाला कहने मतलब और प्रार्थना वाला और रोजियां वाला और परमेश्वर जोड़ने की जरूरत है। मैं पहले दिन दसा कि शैतान तो पर्दा दिखाएगा, तू बहुत प्रार्थना कर ली, तू थक गया, तू थक गई है, तू बस कर, तू रहन दे, आज मीटिंग होगी, अब तू सो जा। जागना पैंदा है। मैं एक दिन ओवरनाइट मीटिंग ਲਈ कमांड करती, ਮੈਨੂੰ हॉली स्पिरिट का चल ओवरनाइट मीटिंग। मेरे घर दे मैं कर गया सी और मैं घर दे हैरान
कहते तू सोना नहीं ਹੁੰਦਾ, तू ਉੱਥੇ भी ड्यूटियां करता, नाइट ड्यूटियां करके आया हॉस्पिटल ਵਿੱਚ, और तू सारी रात मीटिंग भी करदा ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ फर्क नहीं पैंदा? मैं कहा ਮੈਨੂੰ कोई फर्क नहीं पैंदा, और मैं दिन दिन दुपहरे घर दा काम कर रहा। रात ओवरनाइट मीटिंग, उस तो पहले एक दिन जिस दिन मैं घर गया पूरा दिन 6-7 घंटे सफर, बस से सफर, और उसके बाद ओवरनाइट मीटिंग, अगले दिन फिर घर का काम करा रहे हैं और फिर नाइट मीटिंग। अब मैं सोचा कि शायद थक जाऊंगा मेरे जी। अरे जे सोचोगे शरीर बारे तो बाइबल शरीर तो मन लेना था पाप है, शरीर तो मन लाओगे पाप इसलिए क्योंकि तुम अपने शरीर बारे सोच रहे हो ना कि परमेश्वर बारे, अपनी इच्छा ने सोच रहे हो ना कि परमेश्वर बारे। जो तुम परमेश्वर की आत्मा बारे सोचोगे वो आत्मिक चीजें देगा। इसलिए बाइबल कहती परमेश्वर का तेरी निगाह हमेशा स्वर्ग की ओर लगी रहे ताकि आसमान तो पवित्र आत्मा तेरे उतरता रहे। आमीन आमीन। कितने जन समझ रहे? यस। तो बाइबल कहती परमेश्वर का सच्चाई में जानोगे तो आजाद करेगी, फ्री करेगी, और वो होली स्पिरिट के स्पर्श में योग्य बनाएगी। शैतान का गले नहीं तेन तू नहीं होगी देर होगी तेन प्रार्थना करते तेन आत्मा नहीं टच किया, शायद तेरा टाइम नहीं आया, फिर कभी होएगा टाइम, आज नहीं तेरा टाइम, होली स्पिरिट फ्री नहीं है तो फिर कभी प्रार्थना करनी। फिर एलिया का साहब लग गया कि एलिया कहना एक साइड पे कहना पत्थर के सिर पे हाथ रख के बैठा, कहना शायद तेरा परमेश्वर ना सुता तो ना जगाल ऊंची होर प्रार्थना करो, कहते शायद तेरा परमेश्वर स्कूटर लेके गया हो ना बहुत बुलेट पे गेड़े गुड़े मारन, कहते और ऊंची प्रार्थना कर शायद सुन लो। हाँ शायद उसका खाना खांदा पे फ्री नहीं होना, वो परमेश्वर साडा ऐसा नहीं, वो हर वक्त अवेलेबल है। आमीन आमीन। सच्चाई तो मुख ना मोड़ो, परमेश्वर आत्मा जो करने कहता है हिल जाया करो, करया करो, और देखो थोड़ी लाइफ कितना खुल रही है यीशु मसीह नाम विच, कितना स्पर्श तुसी अनुभव कर दे हो। और मैं कह रहा दूसरे भी थोड़ी लाइफ तो ये जानन की पवित्र आत्मा तेरी लाइफ है। यस आमीन। फिर बाइबल कहती है उसने कहा मेरा राज्य गल्लां विच नहीं सामर्थ विच है, पवित्र आत्मा दे विच है। अब गल्लां वाले ना बनो, सामर्थी बनो ताकि परमेश्वर आत्मा थोड़ी जिंदगी चल के कि हाँ इनकी लाइफ से पवित्र आत्मा है। और जिनकी लाइफ कोई टेस्टमनी नहीं है, जिनकी लाइफ कोई टेस्टमनी नहीं, वो अपने मसीह नहीं कह सकता, और वो ता नहीं कह सकता क्योंकि जिनकी लाइफ से हॉली स्पिरिट ने काम किया ही नहीं। हॉली स्पिरिट ने लाइफ से काम करता जो अपने आप को एक निखारा व्यक्ति खड़ा करता है। अब ये सुन चीज निकालो, तीतुस पता किसे मिलेगा? हाँ जी तीतुस तुमसे तो बात। ओके थैंक यू। बस एक बहुत अच्छा वचन लिखा है तीतुस और 3 चैप्टर में पहली वचन। लोगों को सुत दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। उसने क्या उन्होंने चेते करा कि हाकमा ते इख्तियार वाले दे अधीन होन, आज्ञाकार बने रहन, हरेक शुभ काम उत्ते लक बन रखन। अब मैं कहना 2 दी पहली वचन पढ़ो, पहली वचन बस। दूसरे चैप्टर की पहली। हाँ तो खरे उपदेश के योग्य है। उसने कहा तू वो गल्लां आखियां जिहड़े खरे शिक्षा नु फबन। अब एक और वचन चलना, तुसी वचन पढ़ो। अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो और दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पत्नियों और बच्चों से प्रीत रखें। हालेलुया हालेलुया। उसने क्या खरा वचन
ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਗੁਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਲਜਵਾਨ ਹੋਣ। शैतान आप बेइज्जत होकर चला जाए। हम जो अपनी सूरत बनाओ कि परमेश्वर आत्मा मजबूर हो जाए तेरी जिंदगी उतरन दे लिए। परमेश्वर ने बहुत सारे सानू रीजन दिते ने अपने आप को पवित्र करने। परमेश्वर ने बहुत सारे सानू रास्ते दिते ने अपने आप को खरा बनाने दे लिए। वैल्यू किंदी पैंदी है जो खरा। हालेलुया। हालेलुया। और कौन खरा बना सकता है? प्रभु यीशु मसीह। मैं तुम्हें हमेशा एक चीज हर सरमन में दसा, हर मीटिंग दसा, प्रभु यीशु मसीह साडे नमूना बने, साडी गवाही बने। इंसान नहीं कह सकता, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि असी मनुख हाँ जी, धरती दियां जी, पाप तो हो ही मैं गलतियां हो ही मैं गलती पुतले हाँ। कोई नहीं कह सकता। यीशु मसीह जे सब कुछ कर सकते ने, असी भी कर सकते हैं। बाइबल कहती पहला इंसान मिट्टी द्वारा जरूर बने, लेकिन उनके च आत्मा सी। ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं सी। बाइबल कहती यीशु मसीह भी शरीर दे विच सी, लेकिन आत्मा ने भरपूर सी। अब वो साडी गलती है कि असी आत्मा के उत्ते मन नहीं लगाते, बल्कि शरीर से लगाते हैं। इसलिए बाइबल कहती अपना मन शैतान के बंधन छुड़ा और आत्मा के उत्ते लगा, ताकि तू शरीर के कामनावां तो अलग हो सके। जिन्नी देर तक तुसी अपने शरीर तो बाहर नहीं आते, उन्नी देर तक कदे भी परमेश्वर पर आत्मा स्पर्श नूं पता नहीं लगेगा, अनुभव नहीं कर सकते। हालेलुया। 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 कितने जन समझ चुके ने? Yes. कौन समझाइए? आमीन। आमीन। शुते कारा शुते कारा शुते कारा शुते कारा शुते कारा शुते कारा यीशु नासरी ने दिया शुते कारा यीशु नासरी ने दिया शुते कारा शुते कारा शुते कारा शुते कारा शुते कारा शुते कारा शुते कारा। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. मेरा विश्वास है कि आज दे इस वचन के द्वारा तुसी सामर्थ मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आत्मा तो मैं गल करेगा। मेरा विश्वास है जो तुसी पवित्र आत्मा एक वचन में पढ़ता जैसे रसूला के कर्तव्य और 10 दे 34 पद 34 और 35। पर पतरस ने मुंह खोल के आख्या, मैं सचमुच जान लिया परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, सगो हरेक कौम विच जो उस तो डरदा धर्म दे काम करता है सो उसनू पाउंदा है। जिहड़ा वचन उसने इजराइल दे वंश दे कोल कलिया जब मसीह दे वसीले तो जो सबना दा प्रभु है सलाह दी खुशखबरी सुनाई। उस गल नूं तुसीं आप जानते हो जिहड़ी उस बपतिस्म दे मगरों जिंदा यूहन्ना प्रचार किया गलील ते तो सारे यहूदा फैल गई, अर्थात यीशु नासरी की परमेश्वर ने किस विधि नाल उस पवित्र आत्मा अते सामर्थ मसा किया जो वो भला करता है सबने शैतान दे काबू किते हुए सन चंगा करदा फिरा क्यों जो परमेश्वर उनके नाल सी। हालेलुया। Hallelujah. उसने क्या यीशु नासरी की परमेश्वर किस विधि नाल उस पवित्र आत्मा अते सामर्थ मसा किया जो भला करदा ते सबने शैतान दे काबू किते होए नु करदा चंगा करदा फिरा जो परमेश्वर उनके नाल सी। पवित्र आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ कदों काम करती जो परमेश्वर साडे नाल हुंदा है। और परमेश्वर की परमेश्वर कदों साडे नाल जो वचन उनके नाल ने। हालेलुया। Hallelujah. एक 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 रेवलेशन दसना एक तेज की गल दसना जिंदे मन में परमेश्वर के वचन ने वो कदे भी परमेश्वर तो अलग नहीं है। Yes, amen. जिन्हें मन च हर वक्त वचन चलते रहते ने हर टाइम मीनस हर सेकंड जो साह भी लेंदा तो मुझे समझ आती कि मैं
जिंदा कह लो सोचदा, एक आदमी सोचदा ना मैं इदा काम करा तो ये हो जाएगा, लेकिन एक आदमी सोचदा कि अच्छा परमेश्वर वचन ये कोई बंदा पुठे काम कर रहा है और तुम वचन रिलेट कर रहे हो, हाँ वचन च ये लिखा हुआ है और ये उल्टा करिए मतलब ये पाप है, तो मैंने अपने आप बचा के रखना। मतलब एक व्यक्ति जो वचन बारे सोच रहा है और अपने काम के वचन यूज कर रहा है, वो परमेश्वर तो कदे अलग नहीं होया। और जिथे परमेश्वर है उसे परमेश्वर आत्मा है, मैं एक गारंटी देना। आमीन और चाहे वो गलती भी करता फिर काम लेकिन परमेश्वर आत्मा उसको करेक्ट करेगा और उन्हें बचाएगा। आमीन हालेलुया। आप सोचो जो शाऊल का आंदा सी पतरस उन्हें कोई पखारी मांग रहे यार कुछ दे दे, खान पीन में कुछ ये पैसे दे दे, इत्तेफाक ना नहीं बोला कि मेरे को कुछ नहीं है। बाइबल कहती है उसने कहा मेरे को कौन है, परमेश्वर यीशु नासरी कहना उसका नाम है, कहना वो ले ले तो कहना हुन खड़ा हो जा। यीशु मसीह ने उसको मिल गया और वो लंगड़ा चलने लग गया, उन्हें हीलिंग भी मिल गई। बाइबल कहती यीशु मसीह सामर्थ और आत्मा द्वारा चंगा करता रहा लोगों को और पापियों शैतान दे जकड़े ਨੂੰ छुड़ांदा रहा। किन्ने जन समझ रहे कल किसी वचन ने सुनिया सी कि परमेश्वर ਨੂੰ यीशु मसीह कहते अच्छा लोग मैंने की कहते ने, दूसरे लोग बोले बुजुर्ग बोले दर्दी बोले, कोई तन एलिया कहना है, कोई तन यूहन्ना कहना, कोई तन यिर्मयाह कहना, कोई नबी कहते ने। पतरस तू दस तू की कहना है, कहता जीत परमेश्वर दा बेटा। कौन कह सकता जो आत्मा ना कर रहा है, जो परमेश्वर ना जुड़िया हुआ है। और परमेश्वर ने जुड़ने का एक ही रास्ता है, वो परमेश्वर का वचन देना, तो उसकी दुहाई देना, उस उत्ते मनन करना, उन वचनों को अपने मन में वसाना, यही परमेश्वर के करीब करता है। जो परमेश्वर के करीब है पवित्र आत्मा उस तो ज्यादा करीब है। आमीन आमीन। जे तुम यूहन्ना 14 में पढ़ो तो लिखा यीशु पवित्र आत्मा का वायदा करता है, जे तुम मैंने प्यार करते हो तो मेरे हुक्मां की पालना करोगे, मैं अपने पिता को मंगांगा कि वो तो दूसरा सहायक बख्शे कि तो सदा संग रहे। मैनू नहीं पता कि परमेश्वर ने वर्ड देने तो इकट्ठा किया, मैंने नहीं पता सी, मतलब बाइबल बंद करने सोचने बैठ गया सी, लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा वर्ड देता जो सारे सवालों का सारी वचना का निचोड़ तो देन जा रहे हैं। आमीन आमीन। आज जो तुसी कुछ सुनिया मैनू नहीं पता समझ लगी कि नहीं लगी, मैनू नहीं पता तुसी लिखिया कि नहीं लिखिया, पर जिसने लिखिया है और जो सारे मटीरियल इकट्ठा करेगा और जिन्हों बोलते कंक्लूजन, जिन्हों बोलते सिट्टा जो तुम देन जा रहे हैं, और जो तुम सारे सिट्टे खाओगे बचाओगे, जिसको फॉलो करोगे, मैं कह रहा हॉली स्पिरिट दे कामों भी एंटर जा रहे हैं यीशु मसीह नाम दे। यस आमीन। सिर्फ हॉली स्पिरिट का स्पर्श नहीं आएगा, मैं कह रहा हॉली स्पिरिट दे काम भी तुम्हारी जिंदगी च उतरन जा रहे हैं यीशु मसीह नाम दे। यस आमीन। केड़े काम उतरन जल्दी जल्दी निकालो, यूहन्ना 14 जल्दी 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 फास्ट, यूहन्ना 14 और 15 जल्दी 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 फास्ट फास्ट। उसने कहा जी तुम हेडिंग में पढ़ो, यीशु पवित्र आत्मा का वायदा करता है, यीशु पवित्र आत्मा देने का वायदा करता है। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया मेरे नाल तुहाडे नाल सब दे नाल प्रॉमिस किया जे तू मेरी हुक्मां की पालना करेगा, अपने पड़ोसी को बोलते जाओ जे तू मैंने प्यार करता है मेरे हुक्मां की करेगा, पालना करेगा, मेरे वचनों उत्ते चलेगा। अब ब्रदर तो आवाज उच्ची होनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने जो आज वर्ड सुनाए ने, जो मैं घंटा डेढ़ घंटा अपना गला फाड़ फाड़ के बोलिया, कोई मैं कुछ सीक्रेट नहीं समझा रहा सी, कोई काउंसलिंग नहीं कर रहे थे, परमेश्वर वर्ड सुना रहे थे। अब तो आवाज उच्ची होनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ वायदा कर रहे, मेरे नाल ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ और उसने पूरा भी ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ स्पर्श नहीं लिया, आज परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ वायदा कर रहे हैं। आमीन। कौन वायदा कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? परमेश्वर। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ में पढ़ो, ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਲਿਖਿਆ है बाइबल पर हेडिंग, हाँ लिखा है बाइबल उत्ते हेडिंग, यूहन्ना 14 और 15 तो ऊपर एक मोटा मोटा हेडिंग लिखा हुआ है, लिखा है जल्दी दसो यस और नो।
वचन वचन यूहन्ना 14 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और सगे और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, ना उसे देखते हैं और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो कि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन। आमीन। समझ आई कि नहीं आई? परमेश्वर का जगत ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਸਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੂਮਿਕਾ ਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਇਹ ਵਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਵਰਡ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਰਪਿਤ, ਹੌਲੀਨੈਸ ਹੌਲੀਨੈਸ, ਹੁਕਮਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਬਸ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਮਨ ਰਿਪੀਟ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। Yes. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰਮਨ ਆਪ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪ ਸੁਣਨਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੈਡਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ ਨੂੰ? ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ। ਕਿਸ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਤਰ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦਿਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲੂੰਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया हालेलुया। पिता को मंगागा तो दूसरा सहायक बख्शे जो सदा थोड़े संग रहेगा और जिसका नाम की है पवित्र आत्मा। आज तो बात ब्रदर ये नहीं कहेंगे कि मैं पवित्र आत्मा का स्पर्श नहीं लिया। थोड़ा हुक्म मनना, थोड़ा वचन से चलना, इस चीज की गवाही है कि पवित्र आत्मा थोड़े नाल है। क्योंकि थोड़े अपने बल ना तो नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੇ ਅੱਬਾ ਹੇ ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਚਨ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ। ਆਮੀਨ।
आमीन। Yes, Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। ना भले बड़ा ऊंचा है, जिना देवल है यहोवा। ना डबल बड़ा ऊंचा है, जिना देवल है यहोवा। और तूफान हजारा पावे, ओ कदे ना हिल दे। और तूफान हजारा पावे, ओ कदे ना हिल दे। ना डबल बड़ा ऊंचा है, जिना देवल है यहोवा। ना डबल बड़ा ऊंचा है, जिना देवल है यहोवा। अपनी अखड़ बंद करो, अपनी अखड़ बंद करो। बोलो पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा स्वागत करदा अपने जीवन दे विच। पवित्र आत्मा जी, मैं स्वागत करदा अपने जीवन दे विच। पवित्र आत्मा जी, मैं स्वागत करदा अपने जीवन दे विच। प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे खुदावंत आत्मा स्पर्श करे, द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह नाम दे खुदावंत आत्मा ने जिंदगी के एंटर करे। खुदावंत तेरे स्पर्श में जहन कर, तेरे करंट, तेरे फायर में सेव करने द माइटी नेम ऑफ जीसस। सब बंधन जो शरीर के जो बंधन, जो कठोरपन, जो बंधन जो शैतानी ने टूट जाए राइट इन द नेम ऑफ जीसस। बस फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, हर जगह फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आग उतरे बॉडी पे, आग उतरे द माइटी नेम ऑफ जीसस। सब शैतान दी चीजें जलना नाश इन द नेम ऑफ जीसस, नाश इन द नेम ऑफ जीसस, नाश इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह नाम चंगे जो आजाद हो, चंगे जो आजाद हो, चंगे जो आजाद हो। यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम मैं कमांड करदा हर पाप दी आत्मा ने जिंदगी टूटे जाए। यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम मैं कमांड करदा चंगे जो आजाद हो। यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम दे आत्मा ने रास्ते तैयार कर खुदावंद आत्मा कने बंद रास्ते खोल दे। मैं कमांड करदा यीशु मसीह दा नाम दे सब प्रकार की अज्ञानता तो जीवन छड़ जाए। फाइनल क्वेश्चन ऑफ जीसस, बस फाइनल क्वेश्चन ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं किसी दे रसोलियन गाइड में देख रहा, पेट दे रसोलियन गाइड में देख रहा। यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम दे। मैं किसी यूट्रस में कुछ इन्फेक्शन देख रहा, किसी एक साइड यूट्रस पे कोई एक साइड पे होल टाइप, कुछ होल टाइप किसी जख्म और रेशन में देख रहे हैं। खुदा आत्मा में फ्री कर रहे हैं राइट इन द नेम ऑफ जीसस। डॉक्टर ने ऑपरेशन लेकिन बुक किया, मैंने कहा कॉन्शियस, लेकिन खुदा आत्मा फ्री कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। यूट्रस में एक साइड पे कुछ शेड टाइप है, कुछ शेड टाइप, कुछ रेशा, मतलब कुछ जख्म है, बड़ा जख्म हो चुका है और खुदा आत्मा में हील और डिलीवर कर रहे हैं। जो फिट करे सेव करे यीशु मसीह नाम से। जो आजाद हो यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम दे। बाइबल को यीशु मसीह दी हजूरी के अंदर बाइबल के सेम जन बाइबल में चंगा होकर जाना चाहिए। बाइबल कंदी बाइबल टोली के मार यीशु मसीह के अंदर बाइबल में चंगा करते दस। मैं कहना यीशु मसीह नाम दे चंगे जो आजाद हो जो यीशु मसीह नाम दे। मैं किसी दे माइग्रेन की प्रॉब्लम जन देख रहा, माइग्रेन की प्रॉब्लम किसी नु किसी सिर दर्द रहता है, एक साइड सिर दर्द में खुदा आत्मा फ्री कर रहे राइट इन द नेम ऑफ जीसस। माइग्रेन दे पेशेंट चंगे जो आजाद हो जो, माइग्रेन के रोगी चंगे जो आजाद है यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम दे। मैंने खुदा आत्मा हार्ट की प्रॉब्लम है, बोले खुदा ना करे किसी का हार्ट की प्रॉब्लम, किसी दिल की प्रॉब्लम है, किसी पेन है, दिल में पेन है, छाती में दर्द है, खुदा आत्मा फ्री करे उस पेन तो फ्री हो जाए यीशु मसीह नाम। चंगे जो आजाद हो यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम से। चंगे जो आजाद हो यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम दे। मैं खुदा आत्मा किसी कोविड पेशेंट पर दिखा रहे, कोविड किसी कोविड है, कोरोना है, खुदा आत्मा फ्री कर रहे राइट इन द नेम ऑफ जीसस। फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिपोर्ट चेंज हो जाने यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम से। छाती रोग चंगे हो जाने यीशु मसीह नाम से। छाती रोगी चंगे जो आजाद हो यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम दे। एंड अनबिलीवेबल रिपोर्ट होने यीशु मसीह नाम दे। वंडरफुल रिजल्ट होने यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम दे। मैं किसी के रिजल्ट नु आंदा देख रहा, किसी का रिजल्ट आने वाला है
किसी ने एग्जाम देते हैं लेकिन रिजल्ट पेंडिंग है, मैं रिजल्ट पे एक्सीलेंट लिखा है, देख रहा खुदा आत्मा में एक्सीलेंट दिखा है, एक्सीलेंट रिजल्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, एक्सीलेंट रिजल्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं नहीं जानता किसी ने टेस्ट देते हैं लेकिन किसी ने काम करे नहीं, टेस्ट देते नहीं, किसी एग्जाम देते नहीं, मैं नहीं जानता किस चीज है, लेकिन खुदा आत्मा में पास दिखा रहा है, पास हो चुके हैं, एक्सीलेंट रिजल्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। एक्सीलेंट और जिंदा हिस्सा यीशु मसीह ਦੇ ਸਾਮਰਥ्य ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं तेरे सारे शर्मिंदगियां तेरे फेलियर में क्रूस पे टंगदा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, तेरे सारे शर्मिंदगियां क्रूस पे टंगदा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सब बीमारियां में क्रूस पे टंगदा यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम से, सब गिल्टी और सोल में क्रूस पे टंगदा यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम से, और तेरे जीवन तेरे जिंदगी तेरे स्टैंड शेड राइट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे जो आजाद हो जाओ, चंगे जो आजाद हो जाओ, चंगे जो आजाद हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह नाम से चंगाई ने ग्रहण करो, यीशु मसीह नाम से चंगाई ने ग्रहण करो, आत्मा स्पर्श में ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं किसी सिस्टर ਨੂੰ गैर भाषा में पर्दा देख रहा, मैं एक ब्रदर ਨੂੰ गैर भाषा में पर्दा देख रहा, मैं एक सिस्टर ਨੂੰ और गैर भाषा में पर्दा देख रहा, यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम से, कोई 2 वर्ड कोई 4 वर्ड में पर्दा देख रहा, यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम से। रिखेरिया mahoso ribuna mahala kala basheke rikunda na mana kende ribuna mahasa reba kala kusukundi na mana kele birkundur ya nama ribuna mahal kindu ribuna masakala kala kele kende ya mashekere kinna mandu ya nama namande ribuna mahala kroso kuni minde ribuna masakala kala basheke kinda hori ya nama na kindur ya nama na balebele bashikara ribuna mana 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 kende arabala bala bashekere ribuna mahasa arabala kindu रिबाला बाला बाला शाबाला कंदरे भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य पता, भर जाओ यीशु मसीह के नाम में, भर जाओ यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा से भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ यीशु मसीह के नाम में, भर जाओ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, भर जाओ पवित्र आत्मा के साथ, भर जाओ पवित्र आत्मा के साथ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, और बढ़ो, और बढ़ो, और बढ़ो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करो, पवित्र आत्मा स्पर्श ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो, करो, फिर करो, स्पर्श करो, फिर करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिया बरखरबा से खेरे कंदोरिया नमना खेले बे सुखो रिमुना महासारा लमा कंदोरिया नमना खेले बे सुखेंदे। पवित्र आत्मा थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, यीशु दे आत्मा का धन्यवाद कदा, यीशु का धन्यवाद कदा, धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू शुंदली, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू हॉली हॉली फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। हालेलुया, 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 जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा जी, थैंक यू फादर जीसस, थैंक यू यीशु तेरे लहू में धन्यवाद करता, तेरे बदन में धन्यवाद करता, तेरे जीवन जान देने में धन्यवाद, तेरे जीव के लिए धन्यवाद करता पिता, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रार्थना जी, प्रार्थना ने जिंदगी में यीशु तेरे आत्मा ने जिंदगी में रात पर गल करे खुदावंद, स्वप्न द्वारा पवित्र आत्मा ने गल करे खुदावंद, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जिस तरह प्रभु तू खुदावंत सुलेमान खुदावंत पर खुदावंत पिता परमेश्वर आत्मा द्वारा रात भर गल की थी, खुदावंत स्वप्न गल की थी, खुदावंत पिता परमेश्वर जिस सैमुअल में खुदावंत आत्मा द्वारा खुदावंत स्वप्न द्वारा गल की थी, खुदावंत आज आत्मा ने जिंदगी च काम करे, खुदावंत आत्मा ने गल करे, खुदावंत स्वप्न द्वारा खुदावंत आत्मा गल करे, खुदावंत तेरे दूतों को मान कर पिता ने मन शरीर तैयार करे, खुदावंत तेरे आत्मा स्पर्श ग्रहण करने, खुदावंत तेरे दूत ने तैयार कर, दूत तेरी सहायता प्रभु ने सहायता करने, खुदावंत थैंक यू पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद कर पिता, थैंक यू जीसस, तेरी बड़ी सहायता लिए धन्यवाद कर, आज मीटिंग लिए तेरे धन्यवाद कर पिता, तेरे महान वचन लिए धन्यवाद कर, तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह लिए पिता तेरा धन्यवाद कर, थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू, bless us
नाम दे विच और मेरा विश्वास है कि खुदावंद आत्मा तो जिंदगी छू चुका है, आप उनके काम प्रगट होने बाकी ने। यस बाइबल में जिस जगह परमेश्वर आत्मा की आजादी है और तुम अपनी लाइफ में परमेश्वर की आत्मा की आजादी देखोगे, देखोगे यीशु मसीह नाम दे विच। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, तुसी ब्लेस हो।